حماس سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہانیہ تہران میں قاتلانہ حملے میں شہید ہو گئے۔ ایرانی سیکیورٹی حکام اور حماس نے اسماعیل ہانیہ کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ اسماعیل ہانیہ کو یہودی ایجنٹوں نے نشانہ بنایا۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق اسماعیل ہانیہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران گئے تھے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کو تہران میں ان کے رہائش گاہ پر بدھ کی صبح نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں اسماعیل ہانیہ کا سیکیورٹی گارڈ بھی شہید ہوا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے نتائج جلد سامنے لائے جائیں گے۔ حماس نے اسماعیل ہانیہ کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان کر دیا۔ پاپولر فرنٹ فار لبریشن آف فلسطین کے ترجمان مہرون طاہر نے کہا کہ شہید اسماعیل ہانیہ نے فلسطین کاز کے لیے اپنا سب سے قیمتی مال دیا۔ فلسطینی اپنے مقصد کے لیے ہر عزیز اور قیمتی چیز پیش کرنے کو تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دشمن اسرائیل تمام سرخ لکیروں کو عبور کر گیا۔ اسرائیل نے معاملات کو ایک جامع جنگ کی طرف دھکیل دیا ہے۔ مزاحمتی تنظیمیں جنگ کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں۔ اسرائیلی حکومت اسماعیل ہانیہ کے قتل اور ایرانی خود مختاری پر حملے کے گناہ پر پچھتائے گی۔ شہید اسماعیل ہانیہ کا قتل امریکی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ شہید اسماعیل ہانیہ کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ شہادت سے ایران، فلسطینی قوم اور مزاحمتی تنظیموں کا رشتہ مزید مضبوط ہوگا۔ ایران اور فلسطین کے گہرے اٹوٹ رشتہ کو تقویت ملے گی۔ قبل ازیں حملے کے بعد ایران کی اعلیٰ سیکیورٹی قیادت کا اجلاس طلب کر لیا گیا۔ اجلاس میں پاسداران انقلاب کے سینئر کمانڈر شریک ہوں گے۔ ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل حملے پر رد عمل کا فیصلہ کرے گی۔ دوسری جانب ترکیہ نے حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت سے ظاہر ہے کہ اسرائیل امن نہیں چاہتا۔ ترکیہ کی وزارت خارجہ سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسماعیل ہانیہ پر حملہ ظاہر کرتا ہے اسرائیل خطے میں جنگ پھیلانا چاہتا ہے۔ مسلم نون کے رہنما مشاہد حسین سید نے کہا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد کی کشیدگی اور جنگ مزید بڑھ جائے گی۔ مسلم نون کے رہنما مشاہد حسین سید نے کہا کہ یہ خبر سن کر بہت غم ہوا کہ ایک مجاہد کو شہید کر دیا گیا۔ یہ فلسطینی عوام کے لیے ایک بہت بڑی شہادت ہے۔ مشاہد حسین سید نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی باتوں کو سبوتاژ کر دیا گیا۔ یہ فلسطینی جنگ آزادی کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ ان کو ایران کے دارالخلافہ تہران میں شہید کیا گیا۔ یہ ایرانی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس اداروں کی بہت بڑی ناکامی ہے۔ مزید بولے کہ اسرائیل نے یہ قدم اٹھانے سے پہلے امریکیوں کو لازمی تحفظ میں لیا ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ پاک فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے۔ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے فوج پر کبھی الزامات نہیں لگائے بلکہ ہم نے تنقید کی ہے۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ محمود خان اچکزئی کو ہم نے مذاکرات کا مینڈیٹ دیا تھا۔ دوسری طرف سے کوئی نام سامنے آتا تو ہم بات کرتے۔ محمود خان اچکزئی پر ہمارا پورا بھروسہ ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ مذاکرات کے لیے پہلا مطالبہ ہے چوری کیا گیا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ مذاکرات کے لیے دوسرا مطالبہ گرفتار کارکنان کی رہائی اور مقدمات کا خاتمہ ہے۔ تیسرا مرحلہ ملک بچانے کا ہے جو صاف شفاف الیکشن کے بغیر ممکن نہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے بانی پی ٹی آئی کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں فوج اور پی ٹی آئی میں بات چیت کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ برف پگھلنے یا بیک ڈور مذاکرات پر ڈی جی آئی ایس پی آر بات کر سکتے ہیں۔ عطا تارڑ نے کہا کہ یوٹرنز کے علاوہ بانی پی ٹی آئی کی ذات میں کوئی چیز مستقل نہیں۔ پہلے کہتے تھے چھوڑوں گا نہیں، اب کہتے ہیں کہ مجھ سے بات کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا کوشش ہے کہ فوج کو سیاست میں لایا جائے یا اپنی حمایت
कायम करने का कहा जाए। इनके सोशल मीडिया सेल से गालिबन कोई ऐसा मवाक मिला है जिससे ये मिन्नत तरले करने लगे। गुफ्तगू के दौरान इलेक्शन एक्ट में नई मजावजा तरामीम के बारे में बातचीत करते हुए मजीद बोले कि ये पहले ही आइन में मौजूद थी। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। यूएन ह्यूमन राइट्स कमेटी ने भारत में मजहबी अक़लियतों बशमूल मुसलमानों, मसीहियों और निचली ज़ात के हवाले से तशवीश का इजहार कर दिया। यूएन ह्यूमन राइट्स कमेटी ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर, आसाम और मणिपुर के बाद से इजलास में नाम नहाद सदाद दहशतगर्दी क़वानीन के नफाज पर भी शदीद तशवीश का इजहार किया। यूएन ह्यूमन राइट्स कमेटी ने मुतालबा किया है कि भारत फौरी तौर पर इम्तियाजी क़वानीन का खात्मा करे। भारत अपने सिविल मुलाजमीन, कानून नाफिज करने वाले इदारों, अदलिया और कम्युनिटी लीडर्स को मुनासिब तरबियत भी फराहम करे। भारत के इंसदाद दहशतगर्दी क़वानीन और मुसल्लह अफवाज का स्पेशल पावर्स एक्ट बैनुल अक़वामी क़वानीन से मुतसादिम है। जुबैर टवाना ने कबल अज वक्त रिटायरमेंट का फैसला कर लिया। चेयरमैन एफबीआर ने औहदे से सबकदोशी के लिए हुकूमत को 2 हफ्तों का नोटिस दे दिया। ग्रेड 21 के इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज के अफसर अमजद जुबैर ने अगले साल 25 फरवरी को रिटायर होना था। ताहम उन्होंने हुकूमत को तहरीरी मरासला भिजवा दिया। चेयरमैन एफबीआर ने मरासले में कहा कि वो अपना ओहदा छोड़ना और वक्त से पहले रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। ज़राए के मुताबिक अमजद जुबैर टवाना के वज़ीर मुमलिकत अहमद चीमा से भी मुलाकात में ज़मानी तौर पर आगाह किया कि वो एफबीआर के मज़ीद सरबराही नहीं कर सकते, जिसके बाद अब उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को भी तहरीरी तौर पर मुत्तला कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अदाकार सरदार कमाल के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मरहूम अदाकार सरदार कमाल के सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत किया। मरियम नवाज ने कहा है कि अदाकारी के शोबे में सरदार कमाल के खिदमात को याद रखा जाएगा। याद रहे कि पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के सीनियर अदाकार और कॉमेडियन सरदार कमाल गुज़श्ता शब दिल का दौरा पड़ने के सबब इंतकाल कर गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरदार कमाल को मंगल की शब दिल का दौरा पड़ा, जिसकी शिद्दत से वो जाम पर ना हो सके और अपने खाले के हकीकी से जा मिले। सरदार कमाल ने लाहौर हाई कोर्ट ने सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी की मुबैना जाली वीडियो के खिलाफ दरखास्त पर डायरेक्टर जनरल FIA को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिसालिया नीलम ने अज़मा बुखारी की दरखास्त पर बतौर एतराज समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिसालिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि आपको दरखास्त के साथ मुंसलिक तस्वीर हटा देनी चाहिए थी। अगर आप दरखास्त के साथ मुंसलिक तस्वीर हटा देते तो आज दरखास्त लग जाती। अज़मा बुखारी के वकील ने अदालत को बताया कि हमारी दरखास्त पर दूसरा एतराज ये आयद किया गया था कि आप FIA जाएं। हमने एक मुतफरिक दरखास्त दायर की है। हुकूमत ने डिजिटल दहशतगर्दी और फेक अकाउंट रोकने के जाने पहला कदम उठा लिया। पाकिस्तान में पहली बार डेटा प्रोटेक्शन बिल तैयार कर लिया गया। यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, अर्जेंटाइन, सिंगापुर और मलेशिया के बाद पाकिस्तान में भी कवानीन तैयार कर लिए गए। अब किसी की जाती मालूमात बिला इजाजत के इस्तेमाल पर सजा, जुर्माना या कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानिब से बिल सेनेट की कायमा कमेटी में पेश किया जाएगा। बिल के मतन के मुताबिक कोई भी इदारा पर्सनल डेटा बगैर जायज जरूरत इस्तेमाल नहीं कर सकता। इदारा या अथॉरिटी को पर्सनल डेटा लेने के लिए मुतल्लिका अफराद से इजाजत लेना होगी। मतन में कहा गया कि हर शख्स को अपने डेटा तक रसाई देने या ना देने, महदूद रसाई, दुरुस्त या खत्म करने का हक हासिल होगा। तुर्क बहरिया के जंगी जहाज कनाल अड्डा की कराची आमद। बंदरगाह पर पाकिस्तान की जानिब से रवायती अंदाज में खुश आमदीद कहा गया। ISPR की जानिब से बयान में कहा गया है कि तुर्क बहरिया के जंगी बहरी जहाज कनाल अड्डा का कराची बंदरगाह पहुंचने पर पाक बहरिया और तुर्क सफारत खाने के अफसरान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक कराची में कयाम के दौरान तुर्क जहाज के कमांडिंग ऑफिसर, पाक बहरिया के फील्ड कमांडर्स और
दीगर आला हुकाम की मुलाकातें भी होंगी। इस दौरान दोनों ममालिक की बहरिया के माबैन बाहमी दिलचस्पी के पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ISPR की जानिब से बताया गया है कि तुर्किया का वफ्द मज़ार कायद पर हाजिरी भी देगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में वाक़िया होटल में सिलेंडर फटने से 7 अफराद बुरी तरह झुलसकर शदीद जख्मी हो गए। सिलेंडर फटने का अफसोसनाक हादसा लाहौर के इलाके थाना मोची गेट की हुदूद में पेश आया, जहां होटल में सिलेंडर अचानक जोरदार धमाके से फट गया। हादसे के नतीजे में वहां मौजूद 7 अफराद बुरी तरह झुलसकर शदीद जख्मी हो गए। हादसे की इतला मिलने के बाद रेस्क्यू एहलकार मौका पर पहुंच गए और जख्मी होने वालों को तिब्बी इमदाद के लिए मियां अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां कई की हालत नाजुक बताई जाती है। पुलिस ने भी जाए वक़ुआ का जायजा लेने के बाद तफ्तीश का आगाज कर दिया है। मुकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले उलमा का कहना है कि अगर किसी मदरसे में कोई रियासत दुश्मन छिपे हैं तो हम इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार हैं। कराची में मुफ्ती मुनीबर रहमान ने इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस के माहिरीन अल्लामा शबीर मिसरी समेत दीगर उलमाए कराम ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुफ्ती मुनीबर रहमान ने कहा कि हमने कभी मुल्क की सलामती के खिलाफ कोई काम नहीं किया, हमेशा मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े रहे। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि रियासत की जानिब से मदारस की रजिस्ट्रेशन नहीं होती। हम तो चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन हो और बैंक अकाउंट खोले जाएं ताकि हर चीज का रिकॉर्ड रहे। उलमाए कराम का कहना था कि दीनी मदारस से कभी फसाद से फायदा उठाने का सोचा तक नहीं, हमें हरीफ की बजाय हलीफ समझा जाए। साबिक विफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद की ठंडी हवाओं से माहौल में बेहतरी आ सकती है। असद उमर ने कहा कि मेरे पास अंदर की खबरें नहीं, लेकिन कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं। मुल्की हालात की बेहतरी से मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। साबिक विफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि सिर्फ आम आदमी नहीं, कारोबारी तबका भी परेशान है। हुकूमत ने 1700 अरब के टैक्सेस लगाए। बजट के बाद मनफी असर पड़ा है। लोग मुल्क की सियासी गैर यकीनी सूरत हाल से परेशान हैं। सीनियर सियासतदान असद उमर ने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बातों से भी मनफी असर पड़ा। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू से भी बेचैनी में इजाफा हुआ। मुईशत की बेहतरी के लिए सियासी इस्तेहकाम लाना होगा। सवाई दारुल लाहौर के ऊपर आज भी बादलों का राज बरकरार, जबकि रात के औकात में बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में आज दिन भर सूरज और बादलों के दरमियान आगजोली का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आइंदा 2 से 3 रोज तक बारिशें मुतवक्के हैं। मौसम तैयार बताने वालों का कहना है कि लाहौर में हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई। शहर में हवा में नमी का तनासुब 83% तक पहुंचा, जिसके बायस सबकी कैफियत बरकरार है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज बागों के शहर का कम से कम दर्जा हरारत 27, जबकि ज्यादा से ज्यादा 37 डिग्री रिकॉर्ड किया जाएगा। मूसलाधार बारिशों के बायस दरियाए चतराल में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी, जबकि सड़कें बंद हो जाने से ट्रैफिक की रवानी भी मुअत्तल हो गई। मूसलाधार बारिशों के सबब पुलिस चौकी, मकानात, मसाजिद, बागात और फसलें बह गई। गुलीन वादी में सैलाबी रेले ने 16 घरों को मलियामेट कर दिया। लोहे चतराल में बारिशों और सैलाब के पेश नजर दफा 144 नाफिज कर दी गई। चतराल में मूसलाधार बारिशों के बायस पहाड़ों से आने वाले सैलाब से नदी नालों में तूफानी आ गई और दरिया भी भर गया। सैलाबी रेले से चतराल मजदूर शिंदूर रोड बंद हो गया। सैलाब से फसलों, बागात, मसाजिद और मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा है। सैलाबी रेला पुलिस चौकी के साथ साथ कोगजी पुल को भी बहा ले गया।